Good morning, students. Today, this is my second lecture of chapter cash book. So we are doing cash book having double column, means cash and bank column. So as you know that cash and bank column means this type of cash book include two columns in receipt side as well as two columns in payment side. So two columns regarding amount only. In debit side you have date, particulars, voucher number, ledger folio and cash, same as per the single column cash book, but you have to add another column, that is bank amount column in debit side, and same you have to write down in the credit side of the cash book. Means you have to write down the date of the transaction, then detail of the transaction, voucher number, ledger folio means the page number on which you have to maintain these second aspects account in ledger book. Then you have to write down cash amount, then bank amount. Clear? Now the main question is why we prepare double column cash book having a cash and bank column. So the business organization which are having cash transaction as well as so many bank transactions, so it's necessary for those organizations to maintain only one book which contain cash as well as bank balances. क्लियर? एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनको पता है कि उनके कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ बैंक के भी बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो सिर्फ एक ही बुक मेंटेन करेगा, लेकिन उसी में ही टू कॉलम्स एडजस्ट कर लेगा, कैश के लिए भी और बैंक के लिए भी. ठीक है, तो ये सिंगल बुक आपके सारे कैश ट्रांजैक्शंस को और सारे बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी. लेकिन आप अगर कैश बुक मीन्स डबल कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम मेंटेन कर रहे हो, देन देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट एज वेल एज बैंक अकाउंट इन द लेज़र बुक. आपको लेज़र की बुक में कैश का अकाउंट या बैंक का अकाउंट प्रिपेयर करने की लेज़र बुक में सेपरेटली ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन इट. Clear? So what is the method, what is the main procedure to record a transaction in this type of cash book? So you have to follow cash rule, means cash is involved in real account, so you have to apply for cash transaction, you have to apply debit what comes in and credit was what goes out. But because bank is related with the personal account, so according to the personal account rule you have to maintain, you have to follow the rule debit the receiver and credit the giver. मीन्स आपने पहले सारे ट्रांजैक्शंस में से पिक करना है कौन से ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड है, फिर आपने ये देखना है कि किन ट्रांजैक्शंस में कैश आया है और किस ट्रांजैक्शन से कैश गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से. जिनसे कैश आ रहा है यू हैव टू राइट डाउन इन डेबिट साइड, एंड द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स द कैश पेमेंट्स मीन्स in which cash goes out from the business organization, you have to record in credit side. In the same form, regarding check transaction, you have to pick all check transaction first of all, then you have to apply the rule debit the receiver and credit the giver. Means अगर बैंक आपके चेक को रिसीव कर रहा है, you have deposited some checks to bank, then you have to write down in debit side. If you are paying some amount through check to other party, अगर आप किसी पार्टी को चेक से पेमेंट कर रहे हो, then the bank balance will be reduced and you have to write down in credit side. ठीक है, आप इसको, ये ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ के रूल्स हैं. इफ़ यू आर अप्लाइंग मॉडर्न अप्रोचेज़ रूल, then the same means cash is your assets, business organization's asset. So according to the rule of modern approach on assets, if assets are increases then you have to write down in debit side. अगर assets बढ़ती हैं तो आपको debit side में write करना होगा, अगर assets कम होती हैं then you have to write down in credit side. Clear? तो means जब आपकी कैश आ रही है then it will increase your assets, so you have to write down in debit side. अगर कैश की पेमेंट कर रहे हो आप किसी पार्टी को
then it will reduce your cash or reduce your asset, so you have to write down in credit side. अगर आप बैंक को भी मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग करते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग नहीं करते, then bank is also an asset, so the same rule of cash you have to implement on bank. Clear? So if you are receiving any check, so it will increase your bank balance, it will increase your asset, so you have to write down in debit side. If you are paying some amount through check, and in this transaction it will reduce your bank balance, it will reduce your asset, so you have to write down in credit side. Okay, now we will discuss some main points which you have to consider while preparing cash book, means a double column cash book having cash and bank column. So very first is deposited in bank. If a cash amount is deposited in bank or withdrawn from bank, then that type of transaction affects both the sides of cash as well as bank. अगर आप बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हो, कैश आपके पास है, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यू आर हैविंग अ लमसम अमाउंट ऑफ कैश इन योर हैंड एंड यू wants to deposit that amount of cash into bank on a particular day, then what happen, आपका कैश जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड योर बैंक बैलेंस, बिकॉज यू आर डिपॉजिटिंग सम अमाउंट इन बैंक, सो योर बैंक बैलेंस शुड बी इंक्रीज्ड. सो ये ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं. या आप विड्रॉ करवा रहे हो, सपोज यू आर विड्रॉइंग सम अमाउंट फ्रॉम बैंक, आप कुछ बैंक से अमाउंट निकाल के लेकर आते हो, देन इट विल इंक्रीज योर कैश इन हैंड बैलेंस बट इट विल रिड्यूस योर बैंक बैलेंस. क्लियर? तो ये दोनों ही ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपकी कैश बुक के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को, या तो कैश कॉलम को या बैंक कॉलम को इफ़ेक्ट करेंगे. सो दीज एंट्रीज, दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स are known as contra entries. Contra entries means when any type of entry which affects both the sides of the cash book, cash column as well as bank column, then that type of transaction, that type of entries are known as contra entries. And for contra entries there is no need, because both the aspects are entered in the cash book, so there is no need to राइट दिस सेकेंड एस्पेक्ट इन एनी अदर बुक. ठीक है, सपोज आपने कैश को डिपॉजिट करवाया बैंक में, सो जर्नल एंट्री क्या होगी उसकी, कैश इज गोज आउट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड. बट बैंक इज रिसीविंग अ लमसम अमाउंट फ्रॉम यू, from your organization, so bank is the receiver, so your journal entry will be bank account debit to cash account. Clear? So in cash book you have to write down to cash in debit side and you have to write down the amount in bank column, because bank is the receiver of that cash. ठीक है, आप टू कैश को बैंक के कॉलम में कैश बुक में डेबिट साइड पे राइट करोगे. ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, योर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज बिकॉज बैंक इज़ द रिसीवर. सो अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट्स रूल, डेबिट द रिसीवर, यू हैव टू रिकॉर्ड बैंक कॉलम्स डेबिट साइड by writing to cash. But the second aspect is bank, so you have to write down by bank in cash books column. ठीक है, so in cash books column you have to write down the amount, cash column you have to write down the amount and you have to write by bank. Clear? Suppose rupees 5,000 is deposited into bank, so journal entry is bank account debit because bank is the receiver. You are depositing money into bank, so bank is the receiver. So bank account debit you have to write down, and to cash because cash is in goes out form. According to the traditional approach और मॉडर्न अप्रोच, अगर आपकी कैश जा रही है तो एसेट्स डिक्रीज होंगी, सो यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड. सो योर फुल फ्लेज्ड एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. So now you have to record or you have to post this entry into कैश बुक. ठीक है, अब क्योंकि आप कैश बुक बना रहे हो तो जर्नल तो बनेगी ही नहीं, है ना. सो मैं आपको जर्नल को सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ. देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ जर्नल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग कैश बुक. सो अकॉर्डिंग टू दैट जर्नल, बैंक इज़ इन डेबिटेड साइड एंड कैश इज़ इन credited. Bank account debit to cash. So to cash you have to write down in
the debit side of cash book, and the amount you have to write down, because you are writing cash and you are depositing that cash into bank, so your amount will be written in the bank column. Clear? No amount in cash column. So in credit side you have to write down by bank, second aspect of the entry, and because you are depositing amount into bank, so your cash balance will be reduced, so you are writing by bank and your amount will be written in cash column. You are writing cash, your amount will be written in bank column, because both the aspects are written in the same book, means there is no need to maintain cash book as well as bank account, cash account as well as bank account in any ledger book. So both the aspects are recorded here, so you have to write down. There is no ledger folio for this transaction, so voucher number you have to write down. ठीक है, अगर वाउचर नंबर गिवन है क्वेश्चन में देन यू हैव टू राइट डाउन, अदरवाइज यू हैव टू राइट डाउन सी. लेज़र फोलियो में तो आपको कंपल्सरली सी ही राइट करना है, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, बिकॉज ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा. देर इज़ नो एंट्री, नो सेकेंड एस्पेक्ट्स एंट्री इन एनी अदर अकाउंट. In the same form, if some amount of cash is withdrawn from bank, then the journal entry will be you are receiving cash from bank and your bank balance should be reduced. So debit what comes in, cash is in comes in, so you have to write down cash in debit side, and it will increase your cash balance, cash in hand, assets will increase, so you have to write down in debit side. And the second one is because you are withdrawing cash from bank, so your bank balance must be reduced, bank is the giver. So for this by applying these rules you have to write down bank in credit side. So your journal entry will be cash account debit to bank account. तो इसमें भी दोनों एस्पेक्ट्स आपके कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड पे राइट हो जाएंगे. सो यू हैव टू राइट डाउन इन LF कॉलम सी. सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री. क्लियर? नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड. ये आपको ध्यान में रखना है. यू हैव टू मेंटेन सेपरेट एंट्रीज फॉर दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल प्रॉपर. सो नो रिकॉर्डिंग इन कैश बुक. Discount received or discount allowed are not recorded in cash book. You have to pass one journal entry in journal proper book. Next main point which you have to remember, that is a cash column. Cash column, it may have debit balance as well as zero balance, or you can say nil balance. देर इज़ नो क्रेडिट बैलेंस फॉर कैश कॉलम. ठीक है, कैश कॉलम के लिए आपके पास डेबिट बैलेंस होगा. डेबिट बैलेंस मीन्स व्हेन द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन एज कंपेयर टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड का मतलब क्या है, यू आर मेंटेनिंग और रिकॉर्डिंग ऑल टाइप्स ऑफ रिसीप्ट्स in debit side and you are recording all types of payment in credit side. तो आपकी हमेशा क्या होंगी, डेबिट बैलेंस आपका कैश बुक का कब होगा, जब आपकी रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू पेमेंट्स. तो उस कंडीशन में आपके पास कुछ कैश इन हैंड रहेगा एंड दैट शोज़ योर डेबिट बैलेंस फॉर कैश. ठीक है, या फिर क्या होगा, देयर इज़ नो बैलेंस. नो बैलेंस मीन्स ज़ीरो बैलेंस और नील बैलेंस. There should be one another condition that the total of debit side of cash book should be equal to the total of credit side of that cash book. Means या तो आपकी दोनों साइड्स का टोटल बराबर आएगा, इक्वल आएगा, या फिर आपका डेबिट साइड का जो टोटल है कैश बुक का वो एक्सेस में रहेगा एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट साइड. मीन्स आपकी रिसिप्ट्स ज़्यादा रहेंगी और पेमेंट्स कम रहेंगी. देखो, इसका क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं होगा. क्रेडिट बैलेंस कब होगा, क्रेडिट बैलेंस का मीन्स कि आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है. क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा मीन्स कि आपकी पेमेंट्स ज़्यादा आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू योर रिसिप्ट्स. बट आप कैश में पेमेंट कैसे कर दोगे जब आपके पास कैश में रिसिप्ट्स ही नहीं होंगी, है ना. आपके पास जितनी रिसिप्ट्स हैं आप उतनी ही कैश का बैलेंस कर सकते हो. सपोज आपके पास 10,000 है, देन यू कैन एक्सपेंड, मीन्स यू कैन डू योर एक्सपेंसेस अप टू 10,000. ठीक है, या फिर बिलो 10,000.
या तो आप 10,000 के 10,000 खर्च कर दोगे, इन दैट कंडीशन नो बैलेंस इज़ देयर फॉर कैश। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 10,000 तक या 10,000 से कम की ही एक्सपेंसेस कर सकते हो, एक्सपेंडिचर कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। आपके पास 10,000 है, आप 12,000 के कैश पेमेंट्स नहीं कर सकते। सो देयर विल बी नो बैलेंस, नो क्रेडिट बैलेंस इन कैश कॉलम, बट बैंक कॉलम ऑलवेज हैविंग डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, डेबिट बैलेंसेस मीन्स डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इज ग्रेटर इन टोटल एज कम्पेयर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। मीन्स बैंक अकाउंट, बैंक का जो आप कॉलम बना रहे हो कैश बुक में, उसकी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या शो कर रही है, बैंक इज़ द रिसीवर, मीन्स बैंक ज़्यादा रिसीव कर रहा है अमाउंट, ठीक है, और पेमेंट्स कम कर रहा है, मीन्स आपका बैंक बैलेंस शो हो रहा है। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स योर क्रेडिट साइड्स टोटल ऑफ बैंक कॉलम इज़ इन एक्सेस एज कम्पेयर टू दी डेबिट साइड्स टोटल ऑफ बैंक कॉलम। ठीक है, तो वो आपकी ओवरड्राफ्ट की कंडीशन को शो करेगा। मीन्स यू हैव बोरोड सम मनी, योर बैंक, योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ बोरोड a lump sum amount of money from bank, ठीक है, and business organization is liable to pay that excess amount which is withdrawn by the business organization from the bank। ठीक है, तो इसके डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं। डेबिट बैलेंस आपके बैंक बैलेंस को शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस आपके ओवरड्राफ्ट को शो करेगा, बट कैश बुक में कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ कैश बुक विद cash and bank column is maintained, then there is no need to open cash or bank account in ledger as we discussed earlier। अगर आपने दोनों यहीं कैश बुक में ही दोनों कॉलम मेंटेन कर लिए हैं तो सारे ट्रांजैक्शंस के एस्पेक्ट्स जो हैं कैश और बैंक से रिलेटेड वो यहीं आ जाते हैं। सो आपको कैश और बैंक अकाउंट सेपरेटली ledger में ओपन करने का जो है वो ज़रूरत नहीं है। The next main point which you have to remember while preparing cash book having cash and bank column, that is if you are commencing a new business, अगर आप बिज़नेस नया स्टार्ट कर रहे हो and the owner introduces new capital, fresh capital in cash or bank or check form, then you have to write down in cash book debit side to capital account। क्या एंट्री होगी अगर suppose नितिन commenced business and introduce cash as well as check into bank, then cash is in receiving form for business organization because business is a separate entity and Mr. Nitin is a separate entity। so आपने business transaction business के point of view से देखना है कि उस transaction में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। क्लियर? तो नितिन आपके business में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो कैश फॉर्म में कर रहा है चाहे चेक फॉर्म में कर रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि वो चेक जो है हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने नितिन से चेक लिया और बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। सो बैंक इज़ द रिसीवर ऑफ दैट ट्रांजेक्शन। सो आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिकॉज दैट कैपिटल इज़ द लायबिलिटी on business organization and business organization is liable to pay to refund that amount of that invested amount of नितिन आफ्टर अ लमसम टाइम पीरियड। जब नितिन की डिमांड होगी तब उस अमाउंट को वापस करना पड़ेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट एंटाइटी है, सेपरेट लीगल एंटाइटी है और उसने नितिन से अमाउंट इन्वेस्टमेंट का रिसीव किया है। तो वो कैपिटल आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपके लिए एंट्री हो जाएगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर? सो वेन एवर अ न्यू बिजनेस इज स्टार्टेड देन यू हैव टू राइट डाउन टू कैपिटल अकाउंट इन कैश कॉलम, जो आपका कैश का अमाउंट रिसीव हुआ है। इन द सेम फॉर्म यू हैव टू राइट डाउन द अमाउंट विद द सेम एंट्री, यू हैव टू राइट डाउन द अमाउंट ऑफ चेक इन बैंक कॉलम। आप एक ही ट्रांजेक्शन लिखोगे, सपोज 1st January इज़ देयर, सो इन डेट कॉलम यू हैव टू राइट डाउन 1st January एंड देन इन पर्टिकुलर्स कॉलम यू हैव टू राइट डाउन टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? एंड इन कैश कॉलम यू can enter the amount of cash and this with the same entry with the same particular the amount which you received in check form, then you have to write down in bank column. Clear?
So keep in your mind, all receipts you have to write down in debit side, all payments you have to write down in credit side. If in cash, then in cash column. If you are receiving a check in a check form or in draft form, then you have to write down the amount in बैंक कॉलम. ठीक है, सारी रिसीप्ट्स आपकी डेबिट में आएंगी, चाहे वो कैश है. अगर आप कैश फॉर्म में रिसीप्ट्स कर रहे हो तो आपको कैश के कॉलम में राइट करना होगा. चाहे आप चेक रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी डेबिट द रिसीवर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर. तो बैंक रिसीवर है तो वो भी डेबिट में ही आएंगी. मीन्स अगर कैश आ रही है या चेक आ रहा है, यू हैव टू राइट डाउन इन डेबिट साइड. अगर कैश आ रहे हैं तो कैश के कॉलम में चला जाएगा, अगर चेक आ रहा है तो बैंक के कॉलम में चला जाएगा. एंड ऑल द पेमेंट्स जो भी आप कर रहे हो इन कैश फॉर्म और इन चेक फॉर्म, यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड. क्लियर? Next and the most important point which you have to remember, that is check transaction. Different types of check transactions are given to you in a particular question. So how can you can handle these types of transactions? So we can divide it into three categories. First one is, if a check or draft is received and deposited on the same day into the bank, then the entry will be bank is the receiver, so bank account debit. If you are maintaining journal entry, bank account debit to customers account, क्योंकि वो चेक आपको किसने दिया होगा? कस्टमर ने. ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? अगर हम जर्नल एंट्री भी करते हैं इसमें, वैसे देखो आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो आप डायरेक्टली ही ट्रांजैक्शन की वहाँ पे पोस्टिंग कर देते हो. जर्नल एंट्री नहीं होती है सेपरेटली, जर्नल बुक मेंटेन ही नहीं होती है, क्योंकि आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन आपके सीधे कैश बुक में ही चले जाते हैं, जर्नल में नहीं जाती. बट इफ़ सपोज करो कि अगर आपने इसकी जर्नल एंट्री बनानी भी हो तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक इज़ द रिसीवर ऑफ दैट चेक, सो यू हैव टू राइट डाउन इन डेबिट साइड. एंड कस्टमर इज़ द गिवर. वो कस्टमर ने ही चेक दिया होगा ना आपके किसी, ठीक है, किसी भी पर्सन जिसने भी वो चेक दिया है, दैट पर्सन शुड बी क्रेडिटेड बिकॉज दैट इज़ द गिवर ऑफ दैट चेक. क्लियर? तो आपके इस जर्नल एंट्री का इफ़ेक्ट क्या होगा? यू हैव टू राइट डाउन टू कस्टमर अकाउंट इन बैंक कॉलम. ठीक है, आप क्या करोगे? बैंक के कॉलम में, डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में लिखोगे टू कस्टमर अकाउंट, और आपका जो अमाउंट है वो बैंक के कॉलम में चला जाएगा. क्लियर? सो सेकेंड एस्पेक्ट इज़, इफ़ द चेक और ड्राफ्ट विच यू हैव रिसीव्ड इज़ नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे इन टू बैंक. अगर आपका वो चेक या ड्राफ्ट जो आपने रिसीव किया है वो आप सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाते. सपोज़ आज चेक रिसीव हुआ है, ठीक है, आप कल डिपॉजिट करवा रहे हो, 1 मंथ बाद डिपॉजिट करवा रहे हो, 2 मंथ्स के बाद दे रहे हो, आप इवन 1 ईयर के बाद अगर आपकी डिपॉजिट करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में जिस डे आपका चेक आया है, ठीक है, अगर आपने उसी डे डिपॉजिट नहीं करवाया, देन देयर इज़ नो एंट्री, क्योंकि वो चेक आपके हाथ में है अभी और वो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बिकॉज दैट चेक इज़ इन योर हैंड. ठीक है, आपने अभी बैंक में तो दिया ही नहीं. अगर बैंक में दे देते तो यहाँ क्या हो जाता? बैंक इज़ द रिसीवर, बैंक को डेबिट कर देते तो कस्टमर अकाउंट कर देते, जैसे यहाँ किया था. लेकिन अभी वो चेक आपके हाथ में है, सो दिस इज़ योर प्रॉपर्टी. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है ये. मैं आपको एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट आउट करके ही सारे ट्रांजेक्शन्स डिस्कस कर रही हूँ. So if that check is not deposited into bank, because that check is in the hands of business organization, this is a property of that business organization, so you have to write down check in hand debit to customer, because there is no word regarding cash. cash का कोई word नहीं है, so no entry in cash book. ठीक है, ये एंट्री आपको कहाँ शो करनी पड़ेगी? जर्नल प्रॉपर बुक में. ठीक है, so no entry in cash book if the check is received but not deposited on the same day into bank. ये आपने वर्किंग नोट में ये एंट्री आपने शो करनी है, because we are not recording that type of transaction into cash book, because the journal entry is this and this is not affected any column of cash book. Next one is, suppose that check which you have not deposited earlier, suppose is deposited after 1 day, after 2 days, after 10 days, after 1 month or after 1 year, then on that day what will you do? ठीक है, अगर आपने
जो चेक आपको मिला है वो आपने उसी दिन डिपॉजिट नहीं करवाया, उसके कुछ दिनों बाद डिपॉजिट करवा रहे हो, तो जब कभी भी आप डिपॉजिट करवाओगे, वेन एवर द चेक ऑफ कंडीशन सेकेंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, देन यू हैव टू मेड वन जर्नल एंट्री दैट इज़ नाउ द बैंक इज़ द रिसीवर, है ना। अब वो बैंक उस चेक को रिसीव कर रहा है, सो यू हैव टू राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। आपकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी इस ट्रांजैक्शन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। क्लियर। अब देखो ये आपके बैंक कॉलम को तो इफेक्ट कर ही रही है। सो इन बैंक कॉलम मीन्स इन डेबिट साइड ऑफ द बैंक column you have to write down to check in hand. To check in hand account you have to write down in particulars column in the debit side of bank column, and you have to write down that amount in bank column. Clear? Next, fourth type is if the check deposited into bank is dishonored. ठीक है, आपने चेक डिपॉजिट करवाया, चाहे इस कंडीशन में डिपॉजिट करवाया चाहे इस कंडीशन में डिपॉजिट करवाया। क्लियर। आपका वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस मीन्स कि सपोज आपने आपका एक कस्टमर है मिस्टर ए, और आपने उसको सेल किया कुछ प्रोडक्ट्स, आपने उससे 10,000 रुपीज़ देने थे, उसने आपको 10,000 का चेक दे दिया। क्लियर। आपने वो चेक जब बैंक में डिपॉजिट करवाया, चाहे सेम डे करवाया चाहे आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ करवाया, तो बैंक ने आपको क्लियर किया कि इसके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है ही नहीं। क्लियर। तो उसने आपके साथ फ्रॉड किया, गलत किया। सो बैंक हैज़ राइट टू बाउंस दैट चेक। बैंक उस चेक को डिसऑनर्ड कर देगा, बाउंस कर देगा। क्लियर। सो इस ट्रांजैक्शन में व्हेन द check is deposited by you earlier and a bank dishonored that type of check after a specific time period or after on the same day, then it will reduce your bank balance, है ना। अब वो कस्टमर आपका फिर से कस्टमर बन गया, यही ट्रांजैक्शन आपका अपोजिट हो जाएगा, यही एंट्री आपकी अपोजिट हो जाएगी। दैट कस्टमर बिकम्स योर डेटर। ठीक है, आपका फिर से डेटर बन गया ये, और यू आर लाइबल टू पे अ लमसम अमाउंट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज योर बैंक अकाउंट जो आपका ये 10,000 से इंक्रीज़ हुआ था जब आपने चेक डिपॉजिट करवाया था, वो 10,000 से अब वो रिड्यूस हो जाएगा वो बैंक बैलेंस। सो यू हैव टू मेड वन जर्नल एंट्री दैट इज़ यू हैव टू राइट डाउन बाय कस्टमर अकाउंट। मीन्स जर्नल एंट्री क्या होगा इस ट्रांजेक्शन का, पर्सनल अकाउंट और कस्टमर अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डेबिट, पर्सन्स अकाउंट डेबिट, और यू कैन से कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। ठीक है। सो इन बैंक कॉलम यू हैव टू राइट डाउन बाय कस्टमर और बाय पर्सन, एंड यू हैव टू डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम बैंक कॉलम। नेक्स्ट important point regarding check is endorsement of check. First of all, what do you mean by endorsement of check? Endorsement of check means suppose 3 parties are there, A, B and C, and B receive a check from their customer C, and B is liable to pay a lump sum amount to A. Means A जो है B का सप्लायर है और जो C है वो B का कस्टमर है। B ने C से चेक ले लिया, ठीक है, कस्टमर था उसका, पे करना था, क्रेडिट पे सेल किया था। अब B के पास C वाला चेक है पेमेंट की रिगार्डिंग, and now B is liable to pay a lump sum amount to A. A is the supplier of B, suppose. So if B sells the same check which he received from C to A, then that type of check transaction is related with the endorsement of check. अगर एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी से रिसीव किए हुए चेक को किसी तीसरी पार्टी को सेल कर देती है, then that type of selling of check is known as endorsement of check. B receives check from customer C and B given the same check to the supplier or the creditor A, then that type of transaction is known as endorsement of check. ठीक है। तो एक पार्टी से चेक आप रिसीव करोगे, ठीक है, और दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र करोगे। सो 2 parties आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, और यू कैन से एंडोर्समेंट ऑफ चेक। फॉर एग्जांपल सपोज चेक ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम C एंड इंडोर्स टू A। ठीक है, एक चेक आपको C से मिला है 10,000 का है और आपने A को दे दिया है। ठीक है, इन दैट कंडीशन A इज़ द रिसीवर ऑफ दैट चेक। सो अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर, यू हैव टू राइट डाउन A इन डेबिट साइड, एंड C इज़ द गिवर ऑफ दैट
check. Clear? So you have to write down C in credit side. So no cash word is there, then means regarding the condition of endorsement of check, no entry will be passed in cash book. कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी अगर आपको क्वेश्चन में एंडोर्समेंट ऑफ बिल रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन गिवन है. ओके. नेक्स्ट मेन पॉइंट इज इफ अ लमसम अमाउंट चेक इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय योर कस्टमर इनटू योर बैंक. ठीक है, अगर आपने किसी पर्सन से अमाउंट लेना था और उसने उतने अमाउंट का चेक डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया है, for this type of transaction your bank balance should increased, and for this the journal entry will be bank account debit to customer, because bank is the receiver of that check and customer is the giver of that check. Clear? So in cash book you have to write down to customer and you have to record that amount in bank column. Clear? The next main point which you have to keep in your mind, that is bank charges. Bank charges means if a bank is providing any type of facility to their customer, then bank has right to charge a lump sum amount from their customer side. ठीक है, इसी टाइप से अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कामों को, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के काम को बैंक करता है, देन इन दैट कंडीशन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ काम को करेगा तो बैंक उससे उसके बदले में चार्जेस लेगा. सो दैट टाइप ऑफ चार्जेस आर रिलेटेड विद द एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो जर्नल एंट्री विल बी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो विद दिस रूल मीन्स you are not maintaining journal in this type of cash book, so you have to consider it as a expense, and according to the payment rule means क्योंकि expenses हैं वो आपकी payments ही होंगी. ठीक है, so you have to write down that type of charges, that type of bank charges, that type of payment in your payment side means in credit side. तो आप क्या लिखोगे? by bank charges, and you have to record that amount in बैंक कॉलम, बिकॉज आपका बैंक कॉलम बैंक अमाउंट बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा. सो यू हैव टू राइट डाउन बैंक चार्जेस अमाउंट इन बैंक कॉलम.